डियर लर्नर्स, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। गाइस, आज हम लोग पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली वी विल डिस्कस ब्रिटिश नॉवेल्स एंड प्रॉस से जितना भी आपको 2014 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में बने हैं, लेट्स डिस्कस। और मेरा जो बेसिकली फोकस है वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पर है। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा रिवीजन है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द जोनाथन स्विफ्ट, जो आपके ऑगस्टन एज से एसोसिएटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in 1722 the crown awarded a certain English merchant a patent to manufacture copper coins for Ireland. Jonathan Swift intervenes by way of composing a series of letters in response, better known as the Drapier's letter. Who was the merchant? थोड़ा लेंदी है बट इवन दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है। नीड टू रीड अगेन। ओके, वेल द आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर विलियम वुड। अब क्वेश्चन आपको ऐसे ही बना है एग्जामिनेशन में, सो व्हाट विल वी डू हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज गुलिवर नॉन इन ब्रॉड विंड गैंग। ठीक है, सो दिस इज थोड़ा अनप्रोनाउंसिंग नेम है फॉर मी। वेल, इसका जो आंसर है वी हैव ग्रिल्ड रिंग। ठीक है, तो गुलिवर्स जो है आपका बेसिकली गुलिवर्स ट्रैवल करके, दैट इज 1926 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिस नॉवल। ओके, सो ओवरऑल जितना भी आज हम लोग पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन नॉवेल्स एंड प्रॉस राइटिंग्स। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम, आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द लैंड ऑफ हाइनहैम्स Gulliver refused to let his wife and children. So this is summary based question है. Option number C the answer, touch his bread or drink out of his cup. This is next question. At the conclusion of Gulliver's travels, Gulliver argues that his motivations for telling the tale is, that is the answer we have, to inform and instruct mankind. Okay, option number B. Next question, from which source did Swift get the idea of writing verses on the death of Dr. Swift? Here the answer we have option number B, after a reading of Marxism by La Rochefoucauld. Okay. Its next question, tale of a tub is about, so that is about contending religious parties. This is next question based on assertion and reason. Like assertion, Gulliver's travel earned Jonathan Swift the bad name of being a misanthrope. Reason, Swift in the novel was neutral to the image of man. So here the answer we have, like option number B, both B and A, like A and R आपके true हैं, but इसका explanation is not or reason is not great or right. Okay, so you see here option number B the answer. Here we have next question, the predominant tone and thrust of Jonathan Swift's A Modest Proposal are. So this is irony. Next question, the last of Gulliver's travel is to a land of the Hynoms. Okay, option number A. Next question, in the late 17th century a battle of books erupted between which two groups? So here the answer we have option number C, champions of ancient and modern learning. This is next question, in Gulliver's travels Struldbrugs are dash. So answer we have people exempt from neutral death. This is next question, in Gulliver's travel which of the following ideas is not a product of the Academy of Legado, right? So here the answer we have option number D, like a digestible dictionary written on a wafer. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि गुलिवर ट्रैवल से कितना ज़्यादा एग्जामिनर फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट दे आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट नॉवल, राइट? सो आपने अकॉर्डिंगली इन सभी को ग्रेसअप करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन, मगअप करना है। सो आप लोग बी प्रिपेयर्ड रहें आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो कुछ एसेज थे हमारे पास एंड देन वी हैव सम एसे, आई एम जस्ट शोइंग यू, like George Orwell, Mikhail de Montaigne, Charles Lamb, Jonathan Swift. Okay, and here we have list second जहाँ पे कुछ essays हैं, like on the artificial comedy of the last century, Why I Write, A Modest Proposal, on the cannibals. Here you have to match. So guys, answer we have option number B, like A is associated, second like George Orwell, Why I Write.
right? So this is the essay by George Orwell, so it goes to second. Michael D. Montague associated with option number 4 like on the cannibals. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट essays हैं जो आपने मैच करने हैं एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो, दिस कैन बी आस्क्ड अगेन, ओके. चार्ल्स लैम आपके एसोसिएटेड है फर्स्ट यानी कि ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, दिस इज essay, so it is associated option number like first. एंड जोनाथन स्विफ्ट आपके एसोसिएटेड है अ मॉडेस्ट प्रपोजल लाइक नंबर 3. सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एसेज वी हैव मैच. सो गाइस नेक्स्ट वी हैव सम इंपॉर्टेंट नॉवेल्स फ्रॉम दी थॉमस हार्डी जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके नेट के एग्जामिनेशन हुए एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में यहाँ पे लेकर आई हूँ. लेट्स डिस्कस अबाउट हु अमंग द फॉलोइंग प्रोटैगनिस्ट ऑफ थॉमस हार्डी फील्स हिज लॉट एज अकीन टू जॉब्स. So here the answer we have number C like Jude. Next question, Under the Greenwood Tree is written by, this is again most important novel है थॉमस हार्डी का और it is of course थॉमस हार्डी ने लिखा है. So what you have to do, you have to just clear in your mind chronology. जितना भी आपका क्रोनोलॉजी है जो भी इनकी इंपॉर्टेंट थॉमस हार्डी के नॉवेल्स है ज़रूर बिफोर योर एग्जामिनेशन देखकर जाना. और मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी जहाँ पर मैंने आपकी थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन जैसे नॉवलिस्ट की सारी नॉवेल्स जो आपसे पूछी जाती है ना क्रोनोलॉजी मैनर, वैसे इस वीडियो में भी आपकी काफ़ी सारी रिवाइज हो जाएंगी. वी विल रिवाइज, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग गो थ्रो करेंगे लाइक PYQs. सो हियर वी हैव द आंसर थॉमस हार्डी. वेल नेक्स्ट वी हैव अबेल वाइटर is a character in, अभी कैरेक्टर बेस्ड आपसे क्वेश्चन है. सो दिस कैरेक्टर केम इन द मेयर ऑफ कैजरब्रिज. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट नॉवल बाय थॉमस हार्डी. द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टेस्ट द ऑफ द अर्बर्ड विल. दीज ऑल आर मोस्ट रिपीटेड वर्क्स जो आपके थॉमस हार्डी ने नॉवेल्स दी हैं, राइट. अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट. अ प्रोटैगनिस्ट राइट्स a letter of confessions but it gets lost under the carpet only to be found on the वेडिंग डे. हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट. तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रोटैगनिस्ट आपको मिल गया. ओनली यू हैव टू रिकॉग्नाइज. सो हियर वी हैव द आंसर टेस्ट जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है आपके थॉमस हार्डी का. इनफैक्ट बॉलीवुड मूवीज़ में आप प्रेम ग्रंथ मूवी जो है ऋषि कपूर का प्रेम ग्रंथ, सो दिस इज कम्प्लीटली सीक्वल ऑफ टेस्ट. Here we have next question from the following women characters in Hardy's novel. Choose the odd one out. अभी सारे ही आपके women characters हैं like ऑस्टेशिया हो गया, एलिजाबेथ जैन हो गया, लुसेटा हो गया, बादशाबे एवर्डन. यहाँ पे आपसे odd one पूछा उन्होंने. So here we have बादशाबे एवर्डन. अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी वाई दिस इज, क्योंकि कई बार मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. वेल वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is little bit long question. Like many other novelists, Hardy, like Thomas Hardy, employed language variations, dialect, and standards with a purpose. In this respect, which of the following statements is correct? So, आपने according to this respect, आपने answer put करना है. So here we have the answer option number B. His major characters such as Tess and Jude rarely speak in local dialects in spite of their social positions. So this is the reason behind it. This is next question. God is referred to as the president of immortals in. Here we have the answer. Of course, Tess of the Urberville. So you can see so many questions we have discussed with this particular novels. And next question. Which novel of Thomas Hardy begins with the somber descriptions of Egdon Heath? अभी Egdon Heath से आपसे पूछा है. So this is the return of the native. Second number. So just keep in your mind here, first of all this was, I think if I'm not wrong, so it is published 1878 में इनकी नॉवल आ रही है. एंड जूड द ऑब्सक्योर आपकी 1895 में आ रहा है. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आपका 1874 में आ रहा है. अभी नाउ डेज इतना ज़्यादा माइंड, मतलब जितना मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मतलब अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रश में मत कीजिए एग्ज़ाम को लेकर, उतना ज़्यादा मेरा खुद का भी माइंड ऐसा ही हो रखा है. लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करने लगी हूँ अभी. फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट भी मिला था लाइक बोसोला जो कैरेक्टर है आपका डचीज ऑफ माल्फी का, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट और आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रिस्टोफर मार्लो. दैट वाज ब्लेंडर मिस्टेक आई कमिट इन लास्ट वीडियो ऑफ माइंड. सो सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स. इफ़ अगर एनी कोई आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक्स हो रहा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिलता है. इनफैक्ट आई रियली थिंक अबाउट कि इन फ्यूचर मैं इस तरीके की सिली मिस्टेक्स ना करूँ. बट इवन दो आई एम जस्ट लाइक यू, सो दैट्स वाई मिस्टेक सबसे होता है. बट स्टिल आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू ऑल दी थिंग्स सो दैट आप और मैं हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें. ओके
अभी नेक्स्ट भी है, वेल एग्जाम मैं भी देने जाती हूँ क्योंकि हर बार मैं भी अपना एग्जाम देने जाती हूँ जिससे कि मैं अपडेट रहूँ टूवर्ड्स लिटरेचर एग्जामिनेशन, और क्योंकि मेरा जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरा नेट क्वालिफाइड हूँ, सो दैट्स वाई। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, यू कैन सी हियर, which of the following poems by Thomas Hardy was originally titled by the Century's Deathbed? So here the answer we have the Darkling Thrush. ये इनका लाइक पोएम है आपके थॉमस हार्डी का, जस्ट कीप इन योर माइंड, यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन बने हैं, इनफैक्ट यू सी दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स जो आपकी चार्ल्स डिकेंस से अब तक यूजीसी नेट ने पूछा है, लाइक 214 से लेके 224, मैं 224 तक लेकर आई हूँ क्योंकि 225 के सेपरेट पेपर्स में आपके साथ सॉल्व करा चुकी हूँ, कई बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं जितना भी वर्क्स इसमें पूछा है, सो एंड सो फोर्थ। वेल अभी हमारा चार्ल्स डिकेंस से जो नॉवेल्स है, यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैचिंग क्वेश्चन, जहां पर आपने इमेजिनरी लोकेशन को क्रिएटर के साथ मैच करना है। ओके, तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ना आपका पीवाईक्यू थोड़ा सा मतलब मिस प्रिंट है, मैं फिर भी आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए एमिली ब्रॉन्टे जो है आपकी, एमिली ब्रॉन्टे का एसोसिएशन है आपके वदरिंग हाइट से, जहाँ पर आप देखेंगे जिसे थ्रश क्रॉस क्रैंक्स भी बोला है। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा जो मैं वदरिंग हाइट्स लाइक है ना, तो यहाँ पर आपका जाएगा एमिली ब्रॉन्टे का वदरिंग हाइट्स। तो मैं आपको जो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, यू प्लीज़ कंसर्न अबाउट इट, आंसर को और ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा आपने अपने माइंड को यू हैव टू रिलैक्स फ्रॉम दैट। तो वदरिंग हाइट्स आपका एसोसिएटेड है। अभी देखिए थॉमस हार्डी की अगर मैं बात करूँ तो इनका वेसेक्स और एगडन हैथ दोनों ही इनका फिक्शनल लोकेशन रहा है, इमेजिनरी लोकेशन यू कैन से, तो वेसेक्स एंड आपका ईगडन जो बेसिकली आपके ऑप्शन में भी अवेलेबल है हीथ। सो ये बोथ आपके एसोसिएटेड है थॉमस आपके हार्डी के साथ। एंड चार्ल्स डिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो इनका एसोसिएशन है लाइक चार्ल्स डिकेंस का कोक टाउन के साथ, कोक टाउन, तो ठीक है। एंड हियर वी हैव लोवुड पर्सोनेज, और आप लोवुड स्कूल भी बोल सकते हैं, जो आपको अगर याद हो तो जैन एयर में 1847 में जो जैन एयर आया था तो इसका एसोसिएशन था, जैन एयर ऑफ कोर्स बाय शार्लोट ब्रॉन्टे। तो बेसिकली शार्लोट ब्रॉन्टे आपकी जाएंगी लोवुड पर्सोनेज के साथ, और इन दी उनका जो नॉवल था जैन एयर में आपने देखा होगा इट अपीयर्स। ओके, तो लोवुड जो है बेसिकली इट कनेक्टेड विद शार्लोट ब्रॉन्टे। तो यहाँ मैंने आपको 4 नंबर्स ऑफ सभी के बारे में बता दिया, अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान ना देंगे तो आप ये सभी आपने आंसर करना है। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट कीप अटेंशन टूवर्ड्स जो मैंने आपको यहाँ पे फैक्ट्स इन्फॉर्म लाइक आपको मैंने फैक्ट्स बताए हैं यहाँ पे। और अगर आफ्टर दैट आपका कोई कन्फ्यूजन रिगार्डिंग है, अगर आपको लगता है आई हैव नॉट एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर मैनर, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द कोड। सो अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एनएफटी क्वेश्चन है, लाइक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के जितने भी आपका हमारा एग्जामिनेशन हुआ है नेट का, तो एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है क्रोनोलॉजी, और अभी तो बहुत सारी क्रोनोलॉजी पूछी जाती हैं, ये तो बेसिकली आपसे कुछ ही हैं, लाइक ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम, ब्लीक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो मैं आपको सबकी यहाँ पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपका 1860 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और हार्ड टाइम आपका 1854, एंड ब्लीक हाउस 52। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ब्लीक हाउस में इसकी क्रोनोलॉजी आपने याद करने के लिए, ब्लीक हाउस में हार्ड टाइम स्पेंड किया था, तो पहले ब्लीक हाउस आएगा, जहाँ पर भी ब्लीक हाउस होगा देन आफ्टर आपका हार्ड टाइम प्लेस होगा। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज दैट वाज 1859। ओके, नाउ यू गाइज कैन जस्ट अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजी मैनर अकॉर्डिंगली। This is the next question. Who among the following authors were greatly influenced by Thomas Carlyle's writings? So here the answer we have option number Charles Dickens first and Elizabeth Gaskell. So these two आपने ध्यान में रखना है, इनका कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है आपके थॉमस कार्लाइल की राइटिंग से। सो गाइज दिस इज मैचिंग क्वेश्चन, जहाँ पे आपने ऑफकोर्स मैच करना है कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल एंड द नॉवल इटसेल्फ। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिफोर एग्जामिनेशन ज़रूर से कैरेक्टर का लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया था आप लोगों को, रिवीजन बेस्ड वीडियो दिया था जिसमें ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, तो उन्हें आप स्पीड में लगा के ज़रूर से देख लीजिएगा, लाइक उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि कैरेक्टर्स के आपके फ्री के नंबर होते हैं, सिर्फ आपने रिकॉग्नाइज करना होता है। सेम हियर, जैसे कि आपको कोई नॉवेल्स रिकॉग्नाइज करना है तो ये आपके फ्री ऑफ
कॉस्ट नंबर्स होते हैं जो आपको 2 स्कोर कर सकते हो. यू गाइज कैन ईजिली लूज योर ऑल्सो. अगर आपको नहीं पता, अगर आप गलत क्लिक कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपके छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं हायर आपका स्कोर मतलब लेके जाते हैं. तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, सो इट्स अप टू यू. मेरा काम है आपको सजेस्ट करने का, राइट. चलिए, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपका लेडी डेडलॉक है, लेडी बर्ट्रैम है, लेडी हैरियट है, लेडी जैन है. ओके. और कुछ यहाँ पे नॉवेल्स हैं, यू कैन सी हियर. वेनिटी फेयर, वाइव्स एंड डॉटर्स, मैंसफील्ड पार्क, ब्लीक हाउस. तो लेट्स जस्ट मैच देम. तो बेसिकली लेडी डेडलॉक जो है आपकी ये है फ्रॉम दी ब्लीक हाउस. ब्लीक हाउस लाइक नंबर 4 हम जाएंगे यहाँ पे. नंबर 4 ब्लीक हाउस के साथ जो चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है, और ब्लीक हाउस दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1952 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके. लेडी बर्ट्रैम आपको मैंसफील्ड पार्क में मिल जाएंगी. मैंसफील्ड पार्क आपका लाइक नंबर 3, और ये आपका जैन ऑस्टेन का नॉवल है विच इज़ इंपॉर्टेंट अगेन. एंड लेडी हैरियट आपको देखने मिल जाएगी इन वाइव्स एंड डॉटर्स. वाइव्स एंड डॉटर्स नंबर 2, ये आपका एलिजाबेथ गैस्किल का नॉवल है. एंड लेडी जैन आपको मिल जाएंगी इन वेनिटी फेयर, लाइक आपका जो विलियम मैकपीस ठाकरे का इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स नॉवल है. सो ओवरऑल नॉवल, कैरेक्टर एंड द टाइटल, all the things are important for exam perspective. This is next question. Listed below are the titles of novels and the sources to which they are aligned by readers. Match them appropriately. So पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दूँ. You can see here. So कुछ यहाँ पे novels हैं. You see Daniel Defoe's Robinson Crusoe, Charlotte Bronte's Jane Eyre, R.M. Ballantyne, The Coral Island and Charles Dickens' Great Expectations. अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है? The sources, right, to which they are aligned of readers. So here we have some sources here like Peter Carey's Jack Muggs, Z.M. Coetzee Foe, Jean Rice White Sargasso Sea, William Golding's Lord of the Flies. तो White Sargasso Sea बेसिकली जैन एयर का से एसोसिएटेड है, क्योंकि बर्था मैसन जो आपका कैरेक्टर था, सो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वर्क में भी पर्ट लॉर्ड करके नाम है प्रोटैगनिस्ट का व्हाइट सरगासो सी में, जो बेसिकली सेम वहाँ पे परफॉर्मेंस प्ले कर रहे हैं एज इन जेन एयर में आपने देखा शार्लोट ब्रॉन्टे के, जो आपका 1847 में आया था, देन इट केम 1966. मतलब आप मान के चलिए इसी स्टोरी को आगे कहीं ना कहीं रेफर किया जा रहा है. तो आपका जो शार्लोट ब्रॉन्टे है सेकेंड इज गोज टूवर्ड्स द थर्ड. ओके. अभी डैनियल डिफॉय, वैसे आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है. फर्स्ट इज गोज टूवर्ड्स द फोर, लाइक डैनियल डिफॉयज रॉबिन्सन क्रूसो, इनका एसोसिएशन है विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल जो एग्जाम में अक्सर आपको मैचिंग क्वेश्चन में अपीयर रहता है. ठीक है. अभी जो आपका थर्ड वन है दैट इज गोज टूवर्ड्स द सेकेंड, लाइक R.M. बैलेंटाइन का द कोरल आइलैंड, दैट इज एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर सेकेंड, लाइक Z.M. Coetzee's Foe sources, and Charles Dickens का Great Expectation that is associated option number how can it possible, third तो हमारा White Sargasso Sea हो गया, and let me check first. Fourth is goes towards the third, Charles Dickens third, how could it possible, let me check first. So guys, here we have Charles Dickens Great Expectation aligned with source Peter Carey's Jack Muggs, right? So this goes towards the first. This is next question. The office of circumlocution occurs in. So this is occur in Little Dorrit. Its next question. Arrange the following in the chronological order of publication. Here the answer we have option number C. A Christmas Carol, In Memoriam, Henry Ismouth and Man and Women. ईयर आपको याद होगा क्योंकि मैंने कई बार रिवाइज कराया आपके आप लोगों के साथ हम लोगों ने रिवाइज किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर. A Tale of Two Cities has. What has a courageous lady in pen? Okay. This is next question. Charles Dickens' A Tale of Two Cities begin with the sentence. So it start or it begin with it was the best of time, it was the worst of time. और ये कई बार आपसे UGC नेट ने PYQ ऐसे PYQs लाइक मैचिंग क्वेश्चन में आपसे रिपीट किया है. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. This is next question. The Court of Chancery is a setting in Dickens. So here the answer we have Bleak House. This is next question. Little Nell is a character in Dickens. Little Nell आपको मिल जाएंगी The Old Curiosity Shop में, right? This is next question. Charles Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of. So here the answer we have Thomas Grant Green. This is next question. Literary works such as Charles Dickens, David Copperfield, Samuel Butler's The Way of All Flesh and James Joyce का A Portrait of the Artist as a Young Man
प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ विच फॉलोइंग नॉवलिस्टिक फॉर्म। तो नॉवलिस्टिक फॉर्म से आपको कई बार क्वेश्चन मिलता है, और बिल्डिंग्स रोमन जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। बिल्डिंग्स रोमन में बेसिकली आप क्या देखते हैं, इन दिस फॉर्म यू सी कंप्लीट आपको एक प्रोटैगनिस्ट का ग्रो देखने के लिए मिलता है, लाइक इन दी नॉवल में, मतलब उसके चाइल्डहुड से लेके उसके अडल्टहुड तक का जो एक उसका ग्रो है, उसका जो ग्रो अप हो रहा है, दैट इज स्टेप बाय स्टेप आपको नॉवेल्स में देखने मिलता है। सो बेसिकली उस डेवलपमेंट को जहां पर एसोसिएटेड रहता है नॉवेल्स में, दीज आर बिल्डिंग्स रोमन। ओके, तो ये फॉर्म आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है, यू मस्ट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैडी डेडलॉक लेडी डेडलॉक इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस। तो आपने देखा लेडी डेडलॉक से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो ये बेसिकली चार्ल्स डिकेंस की ब्लीक हाउस से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड्स कोर्ट ऑफ चांसरी। Next novel we have, which novels opens thus? Just keep in your mind whether I shall turn out to be the hero of my own life, or whether that stations will be held by anyone as these pages must show. तो मैं आपको बता दूं, लाइंस जो अक्सर आपकी सर्कुलेट होती है एग्जामिनेशन में, रिपीटिशन का काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। सो यू कीप इन योर माइंड, अगर लाइन से जो भी आपको PYQ में सॉल्व करा रही हो, उन्हें आपने ज़रूर से फर्दर एग्जामिनेशन के लिए अपने पास संभाल के रखना है नॉलेज को। ओके, वेल यहाँ पे जो आंसर है डेविड कॉपरफील्ड से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन बट इवन दो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सी, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर अ ब्लैक आइड dwarf who constantly revealed a few discolored fangs that were yet scattered in his mouth and gave him the aspects of a panting dog. So काफ़ी सारा कुछ कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन है। नाउ यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर इटसेल्फ, लाइक डैनियल क्विल्प इन द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। तो आपको नॉवल का नेम चार्ल्स डिकेंस की एज वेल द कैरेक्टर नेम वी ऑल्सो नो अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कैरेक्टर विद, अगेन आपने नॉवेल्स के साथ करना है, लाइक आई एम जस्ट शोइंग यू। नेक्स्ट पेज पर है कैट फ्लोरेंस, ये आपके कैरेक्टर नेम, लाइक कैरेक्टर है नॉवेल्स के। एंड मिस हैविंगशम, एग्नेस वी हैव, और मैं आपको बता दूं जो आपकी कैट है, मैं पहले इनको मैच कर देती हूँ। सो गाइज आई हैव डन फॉर यू, लाइक कैट जो आपका कैरेक्टर है निकोलस निकल्बे, जो नॉवल है आपके चार्ल्स डिकेंस का। फ्लोरेंस आपका डॉम्बे एंड सन से है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव मिस हैविंगशम। मिस हैविंगशम आपको देखने मिल जाएंगी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकेंस का, यू सी हियर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड एग्नेस आपको देखने मिल जाएगी डेविड कॉपरफील्ड में। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3। सो वी हैव जस्ट मैच नॉवेल्स एज वेल द कैरेक्टर्स। Next question, which of the following set of characters in Charles Dickens novel is in the right chronological order? So this is again important question, and the answer we have option number C, Nathaniel Winkle, Mrs. Mann, David Copperfield and Mrs. Pounderway. Okay, next question, Harold Skimpole is a character in, so this is the character from the Bleak House. तो आपने देखा चार्ल्स डिकेंस की जितनी भी हम लोगों ने नॉवेल्स देखा, तो एग्जामिनर आपसे कैरेक्टर्स, नॉवल की क्रोनोलॉजी एज वेल सम ऑफ द नॉवल जो समरी बेस्ड पर वो आपसे पूछ रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर आपने प्रिपेयर किया है अपने आप को दीज नॉवलिस्ट, सो यू गुड टू गो। So guys, now let's practice some important most repeated PYQs from the जॉर्ज इलियट। तो कुछ जो नॉवेल्स आपकी जॉर्ज इलियट से टारगेट हुई है एग्जामिनेशन में 2014 से बेसिकली 2024 तक, लेट्स टॉक अबाउट। और मैं आपको बता दूं जॉर्ज इलियट के वर्क्स अभी 225 में भी आपसे पूछे गए, जैसे कि क्रोनोलॉजी हो गया, इनकी लास्ट नॉवल से क्वेश्चन बना था, तो आपने अकॉर्डिंगली जॉर्ज इलियट की नॉवेल्स को स्टडी करना है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव मैचिंग क्वेश्चन। फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस कैरेक्टर्स, एंड हमको कुछ वर्क्स दे रखे हैं, लाइक वी हैव टू मैच, जैसे कि काउंट फॉस्को हो गए, मार्गरेट हो गए, लूसी स्नो हो गए, मैगी टुलिवर हो गए। हियर वी हैव सम वर्क्स लाइक विलेट, आदमबैट, द वुमेन इन वाइट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव सो गाइस काउंट फॉस्को आपके एसोसिएटेड हैं ऑफ कोर्स द वुमेन इन वाइट, जो बेसिकली आपका नॉवल है विकी कॉलिंस का, तो इट गोज टूवर्ड्स द थर्ड। ठीक है, मार्गरेट आपकी यानी कि हेल जिसको आप बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ से है, जो एलिजाबेथ गैस्किल का वर्क है, नॉर्थ एंड साउथ नॉट और। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 जाएगा। लूसी स्नो आपकी विलेट में है, जो शार्लोट ब्रॉन्टी का वर्क है, विलेट लाइक नंबर फर्स्ट। एंड मैगी टुलिवर आपकी है द मिल ऑन द फ्लोस, यानी कि जॉर्ज इलियट का, जॉर्ज इलियट का जो बेसिकली द मिल ऑन द फ्लोज है, वहाँ पर आपको मैगी टुलिवर मिल जाएगी, नॉट फ्रॉम द आदम, क्योंकि जो आदम बैड इनका वर्क है उसमें जो सेंट्रल आपकी कैरेक्टर है दैट इज वी हैव द नेम डीना।
तो थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे। डीना मॉरिस जो है आपकी, दिस इज द सेंट्रल कैरेक्टर फ्रॉम द आदम बेड, जो आपके जॉर्ज इलियट का नॉवल है। ओके, अदरवाइज यू सी हियर मैगी तुलीवर आपकी फ्रॉम द मिल ऑन द फ्लोर से है, द मिल ऑन द फ्लोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, थोड़ा सा करेक्शन था, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया है, जस्ट लर्न अकॉर्डिंगली। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी हियर डीना मॉरिस इज अ कैरेक्टर इन जॉर्ज इलियट्स नॉवल। सो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया आदम बैड, ठीक है, तो आदम बैड द नॉवल इन विच आपको ये कैरेक्टर एज ए प्रोटैगनिस्ट फीमेल कैरेक्टर है आपकी डीना मॉरिस इन आदम बैड बाय जॉर्ज इलियट। This is next question we have. Who among the Victorian authors has described himself or herself as an agnostic? So here the answer we have George Eliot. और आपको पता भी होगा जॉर्ज इलियट इनका स्यूडो नेम है, मैरी एनी वान इनका एक्चुअल नेम है। जॉर्ज इलियट के नेम से ये बेसिकली अपने वर्क्स पब्लिश कराती थी, क्योंकि शी बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। और उस समय क्या होता था, जितना भी फीमेल राइटर्स रहते थे उनको कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था जब कोई बुक पब्लिश होता था। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, अपने स्यूडो नेम के थ्रू इन्होंने अपनी बुक पब्लिश कराई। होप यू अंडरस्टैंड द रीजन behind it. Here we have the next question. George Eliot's attempt to write a historical novel of the Italian Renaissance was not successful. Which was this novel? So here we have Romola, right? Abhi next question. The prelude to Middlemarch makes a reference to the particular history of a remarkable woman. So here the answer we have Saint Theresia. Saint Theresia. Okay. This is the next question. Dash read Adam Bad, which with such pleasure that she not only keenly recommended it to her relatives but also commissioned two paintings of scenes from the novel. So here the answer we have Queen Victoria. ये जो डैश है यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया फील होंगी। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देखा, जितना भी आपका विक्टोरियन एज से एसोसिएटेड जो आपका नॉवेल्स हैं वहाँ से जो एग्जामिनर है कैरेक्टर्स, राइट, आपकी क्रोनोलॉजी एज वेल नॉवल इटसेल्फ एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन एज वेल समरी, यानी कि आपने क्या करना है, इनकी समरी एटलीस्ट कोर आइडिया यू मस्ट नो अबाउट दी फेमस वर्क्स ऑफ ईच ऑथर्स, जैसे थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, जैसे मैंने अभी नॉवेलिस्ट आपके साथ डिस्कस किए। सो इनको ज़रूर से आपने करना है बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, सो नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट और रिवाइज सम मेजर नॉवेल्स जो पीवाईक्यूज आपके जैन ऑस्टिन की नॉवल से बने हैं। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पूफ ऑफ अ गॉथिक नॉवल। सो हियर द आंसर वी हैव नॉर्दिंगर अबे, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क बाय जैन ऑस्टिन, जिसमें आपको कुछ आप बोल सकते हो रिडिक्यूलस जो एक गॉथिक आपके एलिमेंट से यू गेट इन दिस वर्क, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर, right, question number next, which of the following novels is a satire on the gothic novel? So here the answer we have again Northanger Abbey. तो satire भी of course ये है आपकी जो gothic basically novels है। Next question, who famously said 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on? किसने बोला ये? Jane Austen ने। Who said this? This is the great statement about Jane Austen, और एग्जाम में पूछा, it means it is important। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्दिंगर अबे इज अ पैरोडी ऑफ द। सो हियर वी हैव गॉथिक। तो देखा आपने नॉर्दिंगर अबे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, it's a long but even though important. Jane Austen's Pride and Prejudice starts with the famous statement, it's a truth universally acknowledged that a single man's possessions of good fortune must be in want ऑफ अ लाइफ। सो ये सबसे पहले आपने ओपनिंग लाइन की तरह इसको रिमाइंड रखना है, क्योंकि ओपनिंग लाइन से आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन ऐसे ही एग्जामिनर उठा के दे देता है, और जितना भी देता है वो आपके सर्कुलेट होते हैं पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली आंसर बन रहा है दैट इज द सराउंडिंग फैमिलीज एंड मिसेस बीनेट, राइट। And then fourth one, like first, second and fourth, like the women of Jane Austen's age and society, find out the correct combination according to the, okay, so here the answer we have only ये आपका नहीं है ऑप्शन नंबर 3, अदरवाइज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग this group of young male characters in Jane Austen's novels is not sent to the university for education? So here we have Henry Tilney. It's a factual information based on question from the Jane Austen's novels. Like who does Harriet Smith finally marry in one of Jane Austen's novels? So here we have Mr. Martin. Okay. Now the next question you see here, I'm just showing you who among
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, कौन है जो कैरेक्टर नहीं है आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस में? सो हियर वी हैव ऑप्शन नंबर सी, मिस बैट्स, अदरवाइज डार्सी, बिंगले एंड कॉलिंस यू हैव स्टडीड इन दैट पर्टिकुलर नॉवल, बट जो ओड वन है दैट इज मिस बैट्स. Next question. Which one of the following novels of Jane Austen was abandoned unfinished? अभी unfinished इनकी कौन सी नॉवल है? So here we have the answer, The Watson. क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनती है और फ्री के मार्क्स होते हैं. Only you have just recognize the novel which is unfinished, posthumous publication and last novel. यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं. Debut novel हो गया. Let's talk about some important novels from the Walter Scott. Which of the following is not written by Walter Scott? Ivanhoe, Lady of the Lake, Heart of Midlothian and The English Mail Coach. तो इट वॉज नॉट रिटन बाय आपके वॉल्टर स्कॉट. और जिसने द मेल इंग्लिश मेल कोच लिखा है आपको मुझे कमेंट में बताना है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नॉवल है जो एग्जामिनेशन में आपसे कई बार पूछा है. ओके, सो जस्ट कीप इन योर माइंड. अगर नहीं भी पता है तो मुझे पता करके आपने बताना है. द इंग्लिश मेल कोच रिटन बाय, अदरवाइज इवानहो, लेडी ऑफ द लेक, हार्ट ऑफ मिडलथियन. ये आपके तीनों नॉवेल्स हैं जो आपकी वॉल्टर स्कॉट ने लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द हार्ट ऑफ मिडलियन वॉल्टर स्कॉट का जो बेसिकली वर्क है, नॉवल है, डील्स विद रियल पॉलिटिकल एंड पर्सनल डिटेल्स, बट नोटेबल अमंग हिज कैरेक्टर्स इज द डिपिक्शन ऑफ. सो हियर द आंसर वी हैव क्वीन कैरोलिन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स. तो कुछ पोइट्स हैं, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है. सो दीज टू आर रॉन्ग. Basically, to answer this question, option number D, Walter Scott, Byron, Shelley and Keats. Which Walter Scott novel is set in France in the 15th century? So here we have Quentin Durward. This is the novel which set 15th century. Now guys, कुछ PYQs from the Bronte sisters. Let's discuss which of the following arrangement is in the correct chronological sequence. तो correct आपको बताना है. सबसे पहले वदरिंग हाइट्स आ रहा है, फिर विलेट आ रहा है, फिर नॉर्थ एंड साउथ आ रहा है, एंड देन वी हैव आदमबैट. Next question. A fragmentary unfinished novel entitled Ema was published in Cornhill magazine. Identify the author. Here we have the author, Charlotte Bronte. Next question. In which novel does the hero, driven by passion and revenge, add a new dimensions to the concepts of suffering? So here the answer we have option number A, Wuthering Heights. आपने देखा होगा Wuthering Heights का जो हीरो है, बेसिकली जितना भी कैटेगरीज यहाँ पे बताई हैं, categorize into that category. Okay. Here we have next question. I am not an angel dash and I will not be one till I die. I will be myself. This is dash. So here we have Aurora Legg in the Eponymous poem. Aurora Legg one of important है जो examination में कई बार target हुई है. So just keep in your mind while answer to this question. No. I have commit a blunder mistake here. In fact, आई एम नॉट एन एंजल, ये जो आपकी लाइन है जैन एयर से आई है इन एपोनिमस नॉवल. ठीक है, प्लीज जस्ट करेक्ट इट. जैन एयर का है ये, जैन एयर का, राइट, 1847. एंड आई विल नॉट बी वन टिल आई डाई, आई विल बी माई सेल्फ. सो ये जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज एसोसिएटेड जैन एयर. ओके, it's my bad guys. Next, which character in Jane Eyre uses religious to justify cruelty? So कौन है? we have Mr. Brocklehurst. So guys, this is matching question. Again, characters with their works like Pip and Casaubon, Becky Sharp, Heathcliff. Middlemarch, Great Expectation, Wuthering Heights, Vanity Fair. So answer we have option number C, like Pip जो है आपके associated है Great Expectation यानी कि second. Okay, and आपका second was like जो B option है, सेकेंड इज एसोसिएटेड. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. हाँ, हमने ठीक किया है. पिप तो हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशन से है, राइट. और उसके बाद जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है लाइक बी और ए हमारा है. लेट मी अरेंज फर्स्ट. ओके, देन आई शो यू. सो गाइस, हियर आई हैव मैच. सी, पिप जो है आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कैरेक्टर है, एंड कैज़ाबोन आपको मिल जाएंगे मिडिल मार्च में, बेकी शार्प आपको मिल जाएंगी वैनिटी फेयर में, एंड हैथक्लिफ आपको मिल जाएंगे वदरिंग हाइट्स में. Next question. Which two of the correctly describe the features of Wuthering Heights? Flashback and time shifts,
ऑडिबल ऑब्जेशंस, मैजिक एंड रिचुअल्स, एक्यूट इवोकेशन ऑफ प्लेस। तो देखो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर एक तो ए बनेगा, फ्लैशबैक्स एंड टाइम शिफ्ट्स आपको इसमें देखने मिलेगा। ऑडिबल का कोई इसमें रोल नहीं है। ऑडिबल कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका सन्स एंड लवर्स में आया है, जो आपके चार्ल्स डिकेंस का है नॉवल, ठीक है, 1913 पब्लिकेशन। इस पर्टिकुलर नॉवल में ऑडिबल कॉम्प्लेक्स आया है जो सिगमंड फ्रूड का कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज एक्यूट इवोकेशन ऑफ प्लेस आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट एंड फोर्थ जो है फीचर्स एसोसिएटेड है वदरिंग हाइट्स के साथ। Here we have some novels, in fact PYQs जो आपके 214 से लेके 22014 तक 224 तक जो आपके PYQ बने फ्रॉम दी EM फोस्टर्स की नॉवल से। लेट्स डिस्कस। आइडेंटिफाई द स्टोरी फॉर विच EM फोस्टर रॉट द लिबर्टो फॉर इट्स ओपेरा वर्जन। सो वो कौन सा इनका नॉवल है, दैट इज बिली बर्ड। अभी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, बट द आंसर क्वेश्चन इज टू big. The novel Muriel by E.M. Forster, one of most important है, and appeared posthumous in 1971. Okay, it had a homosexual themes. Yeah, it's right. So Forster considered its subject matter too indelicate for publication during his lifetime. It was influenced by a writer who was socialistic and open homosexual identify. So here we have the answer, Edward Carpenter. Okay. Here we have next question. The phrase only connect is associated, so it is associated E.M. Forster. अभी क्या होता है, मैचिंग क्वेश्चंस आपको बनते हैं 225 में, एंड दे आस्क यू ओनली कनेक्ट। ऑन द अदर हैंड कुछ ऑथर्स होते हैं एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज, सो यू प्लीज कीप इन माइंड। यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन बना है, बट अभी आप लोगों को मैचिंग क्वेश्चन में ये बेसिकली मतलब पूछे जाते हैं, बट इवन दो सर्कुलेट होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दी फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज नॉट रिटन 1922। देखिए यूलिसिस आपका 1922 में पब्लिश हो रहा है बाय जेम्स जॉयस। जेकॉब्स रूम बाय वर्जीनिया वुल्फ आपका 1922 में पब्लिश हो रहा है। एरोन्स रोड अगेन इंपॉर्टेंट 1922 में पब्लिश हो रहा है। लेकिन ऑप्शन 4 जो है नेक्स्ट पेज पे, अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया जो आपके E.M. फोस्टर का वर्क है, दैट इज 1924 में पब्लिश हो रहा है। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न राइटर्स इज एसोसिएटेड विद द कोट ओनली कनेक्ट। अगेन यू सी सेम क्वेश्चन आपसे अनदर क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। नाउ द आंसर वी हैव अगेन E.M. फोस्टर। So next question, where angels fear to treat is a novel by, where angel fears to treat, this is again by E.M. Forster. Now guys practice some PYQs from the D.H. Lawrence। और मैं आपको बता दूं D.H. Lawrence आपसे अपडेटेड 225 में भी इनके कैरेक्टर्स, इनकी नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई है। सो D.H. लॉरेंस को आपने बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर अ सिंगल डे एटलीस्ट यू हैव टू जस्ट गो थ्रू, क्योंकि ये पर्टिकुलर बंदा आपसे बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। और अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि पीछे से कैसे पूछे जा रहे थे, लाइक 22014 एंड 224 यानी कि 2024 तक कितना पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द रोमन अ क्लेव फ्रेंच फॉर नॉवल विद अ की uses contemporary historical figures as its chief character. They are of course given fictional names. One example is Aldous Huxley's Point Counterpoint. Its mark Rampion is modeled on. So here we have the answer, D.H. Lawrence. So D.H. Lawrence associated question है. Again you see this is the next question. The concepts of star equilibrium is connected with man women relationship appears in, so it appears in Love in Women जो इनका 1920 में publish हो रहा है, right? And next question, D.H. Lawrence 1926 novel The Plumped Serpent is set in which country? So it's set not B, it was set in Mexico. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इनकी नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी जो आपने लास्ट में ज़रूर से रिवाइज करनी है, एंड आपको कैरेक्टर ज़रूर से देख के जाने हैं। मैं कई बार फ्रेंड्स आपको रिवाइज करा चुकी हूँ। इनफैक्ट इनकी जितनी भी नॉवेल्स 10 और 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जितना भी नॉवेल्स का क्रोनोलॉजी यू हैव जस्ट प्रिपेयर्ड, उनके कैरेक्टर्स भी ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड द सन्स एंड लवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका प्लम्ड सरपेंट हो गया, एंड आपका वाइट पीकॉक हो गया, आपका विमेन इन लव हो गया, लेडी चैटरलेज लव हो गया। सो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रेनबो ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्रोनोलॉजी आपको बन रहा है। मैं 225 के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अदरवाइज मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर दिखाती, जो मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है अच्छे से। अभी लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ड्रम इज अ कैरेक्टर इन अ नॉवल। तो गर्ड्रम आपको कहाँ मिल जाएंगी? एक तो D.H. लॉरेंस का बेसिकली नॉवल है जिसमें आपको गर्ड्रम मिल जाएंगी। आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि कई बार मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ आपको। In Women in Love 1920, what is when Winifred's Pekingese dog called? So उसको क्या बोला जाता है? लूलू।
too strange name actually. How does Women in Love open? How it is open? It open with the Brangwen sister Ursula and Gudrun. तो आपको शायद से पता ही लग गया होगा अभी कि जो गर्डरन है आपकी बेसिकली जो कैरेक्टर है फ्रॉम द विमेन इन लव, जो आपका डी एच लॉरेंस का 1920 में नॉवल आया था, फ्रॉम दिस कैरेक्टर एंड उर्सुला ऑल्सो, ये बोथ द सिस्टर्स है ब्रैंगवन फैमिली की, एंड आर वर्किंग एंड टॉकिंग. दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विमेन इन लव. Identify the author in whose works the character Ashanton appears many times. So here we have Somerset Maugham. Now the next question जो आपसे बेसिकली अभी अपडेटेड फॉर्मेट में पूछे जाते हैं फ्रॉम द डी एच लॉरेंस वर्क, लाइक आपको अरेंज करना है डी एच लॉरेंस का नॉवल्स. सो वैसे जो ग्रेट अरेंजमेंट है वी हैव सन्स एंड लवर्स, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इनका 1913 आ रहा है. द रेनबो इनका 1915 में आ रहा है. कंगारू इनका 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 कंगारू आ रहा है, आई थिंक इट वॉज, और प्लम्ड सरपेंट आपका 1926 में आ रहा है. कंगारू केम इन 1923 या. तो बेसिकली आपका जो क्रोनोलॉजी है 13, 15, 23 एंड 26. ओके, नाउ हम लोग कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं जो वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल से आपसे बने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कीप इन योर माइंड द टाइम लाइन 1882 to 1941, एंड इन विच नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ डज अ पेंटर द act of painting actually figure as a character. So here we have the answer to the lighthouse जो इनका 1927 में पब्लिश हो रहा है. The voyage out, the waves, Jacob's room 1922, 1931, ये ऑलमोस्ट इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं और यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी एनी हाउ बनती ही बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस हैज़ अ टिपार्टी स्ट्रक्चर, द 3 पार्ट्स बेसिकली, और उसके नेम आपको बताने हैं. अभी कौन सा नेम वो नहीं है, एग्जैक्ट पूछा है. सो द विंडो पासिस लाइट हाउस, दिस पर्टिकुलर नॉवल 1927 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स जो हमारे द विंडोज, द पासिस एंड द लाइट हाउस, और इनका भी अपना सिग्निफिकेंस है ईच पार्ट का इन द नॉवल में. एंड द स्काई जो है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी पार्ट ऑफ दिस नॉवल. Next question, Virginia Woolf to the Lighthouse begins in a piece of dialogue. Yes, of course, if it's fine tomorrow, said Mrs. Ramsay, but you will have to be up with luck, she added. Present among the listeners of her remark is. तो आपको यहाँ से 2 और 3 थिंग्स ज़रूर से रिवाइज हो जाएंगे. तो वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल 1927 में ओपनिंग लाइन हमें यहाँ से पता लग गया. अभी ये ओपनिंग लाइन में आपके लिसनर कौन है? सो वी हैव उनका बेटा, जो उनका बेटा होता है नॉवल में आपके मिस्टर रामसे का, तो उनका बेटा सुन रहा होता है. ओके, नाउ गाइज प्रैक्टिस सम मोस्ट पीवाईक्यूज जो आपसे पूछे गए हैं, ऑफ कोर्स 14 से 24 तक फ्रॉम द जेम्स जॉइंस की नॉवल. लेट्स डिस्कस. और इनका जो टाइम लाइन है सेम आपके वर्जीनिया वुल्फ का है 1882 to 1941. द कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम मेक्स एन अपीयरेंस इन द नॉवल. सो हियर वी हैव द आंसर यूलिसिस बाय आपके जेम्स जॉइस 1922. तो मैं आपको बता दूं जेम्स जॉइंस से टेक्निक, थीम्स और बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इंटरलिंक करके क्वेश्चंस बनते हैं. ऐसे ही आपसे वर्जीनिया वुल्फ से पूछे जाते हैं. तो क्योंकि ये मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं विक्टोरियन लिटरेचर की, और एज मतलब नॉट विक्टोरियन, आई एम सेइंग अबाउट ब्रिटिश लिटरेचर की बेसिकली मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके जेम्स जॉइस एज वर्जीनिया वुल्फ. तो ओवरऑल आप देखेंगे इनके जो वर्क्स हैं वो एग्जामिनेशन में इनकी टेक्निक, थीम्स आपको ज़्यादा मतलब लाइक फोकस किया जा रहा है एग्जामिनर के थ्रू, तो आपने उन्हें ज़रूर से देखना है. अपार्ट फ्रॉम आपने क्रोनोलॉजी ऑफ वर्क्स, कैरेक्टर्स ऑफ द वर्क्स ज़रूर से मगअप करने बिफोर एग्जामिनेशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जेम्स जॉइस एग्जाइल्स इज अ, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट्स अ प्ले. जस्ट कीप इन योर माइंड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी हियर, What was the title of the collection of short stories published by James Joyce? 1914 में इन्होंने डब्लिनर्स करके शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश किया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज देखने मिल जाएंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो एग्जाम परस्पेक्टिव. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what is the final word in Joyce Ulysses? So final word we have yes. This is next question. When was English ban on James Joyce Ulysses lifted? So here the answer we have 1936. Question number next. A book that faithfully readers a young man's confused images of love and rejection is. So here the answer we have a portrait of the artist as a young man. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन डेडलेस वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है बेसिकली. एसोसिएटेड, तो यहाँ पर जो एसोसिएटेड है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एंड यूलिसिस. ओके, सो बोथ दी वर्क्स आपके जेम्स जॉइस के हैं. एंड मैं आपको बता दूं स्टीफन डेडलेस से एसोसिएटेड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपके बने हैं, सो आपने इनको भी अकॉर्डिंगली रिवाइज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉली ब्लूम्स कैरेक्टर इन जेम्स जॉइस, तो ये आपके यूलिसिस में है जो 1922 में आया है इनका.
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द preliminary version of James Joyce's portrait of the artist as a young man was called, so it is called Stephen Hero. अगेन मैचिंग क्वेश्चन यू सी हियर, आपको कुछ नॉवेल्स हैं एंड आपको कैरेक्टर्स हैं. सो अ पैसेज टू इंडिया, टू द लाइट हाउस, विमेन इन लव एंड यूलिसिस. यूलिसिस 1922 बाय जेम्स जॉयस. अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर्स 1924. टू द लाइट हाउस, वर्जीनिया वुल्फ 1927. विमेन इन लव, D.H. लॉरेंस 1920. तो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे मॉली ब्लूम आपकी एंड लिली ब्रिस्को जो कि नेक्स्ट पेज पर है. तो लेट्स देम मैच. ओके, सो आपका जो आंसर है बेसिकली ऑप्शन नंबर बी है. लाइक आपका जो फर्स्ट है दैट इज एसोसिएटेड सेकंड, फर्स्ट एसोसिएटेड सेकंड, यानी कि जो यूलिसिस है वो आपको मॉली ब्लूम आपको देखने मिल जाएंगे यूलिसिस में. एंड अ पैसेज टू इंडिया में आपको देखने मिल जाएंगे लाइक मिसिस मूर, लाइक फर्स्ट. एंड टू द लाइट हाउस में यू सी ऑप्शन नंबर 4 लिली, राइट. टू द लाइट हाउस में आपको लिली मिल जाएंगी. एंड रिमेनिंग हमारा बचा विमेन इन लव, इसमें आपको मिल जाएंगे गिराल्ड क्रिच. गिराल्ड क्रिच कौन होता है ये? बेसिकली जो कपल है ना 4 यहाँ पे, उर्सुला और गर्ड्रन, उनके जो कपल मैच है उनमें से एक बंदा है ये. दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एग्जाम्पल्स ऑफ पोएटिक कंपाउंडिंग आर फाउंड इन द वर्क ऑफ विच 2 मॉडर्निस्ट राइटर. तो किन के राइटिंग्स में आपको पोएटिक कंपाउंडिंग देखने मिल जाएगा? सो हियर द आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी, जेम्स जॉयस, एंड ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी, G.M. हॉपकिंस. Next question, arrange the following chronology order of publication. Chrome Yellow, Sons and Lovers, Mrs. Dalloway 25, A Portrait of the Artist Young Man 1916. तो इन तीनों का तो मुझे पता है, 20 का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. सो अभी आप लोग अकॉर्डिंगली इसका सेटिंग कर लेंगे. लाइक बी फर्स्ट आ रहा है, देन आपका डी आ रहा है, देन उसके बाद आपका आ रहा है मिसेस डालोवे. नो नो, नॉट मिसेस डालोवे, मिसेस डालोवे आपका लास्ट में आएगा, उससे पहले आपका क्रोम येलो आएगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट PYQs बेस्ड ऑन ग्राहम ग्रीन की नॉवल से बेस्ड ऑन जो आपके PYQs बने अभी. लेट्स चेक अबाउट फर्स्ट नॉवल रिटन बाय ग्राहम ग्रीन इज. सो फर्स्ट नॉवल कौन सा है इनका? द मैन विद इन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which novel of Graham Greene in the following list does not end in some form of suicide by the protagonist? So overall इनकी novels के लास्ट में जो protagonist होता है वो suicide करता है. तो अभी किस वर्ली नॉवल में नहीं suicide किया है? So here we have England Mad Me, otherwise The Heart of the Matter, Britain Rock, The Power and the Glory are the novels जहाँ पर एंड में क्या हो रहा है, आपका जो protagonist है he commits suicide or he or she. This is next question. The protagonist returns with an admonitions the diamond sent to him for smuggling out a packet of diamonds as bribe. This scene occur in one of the novels of Graham Greene. Identify the novel. So here the novel we have The Heart of the Matter. Next question. In this novel by Graham Greene, a double agent used classic works of fiction to encode secrets information. He put Clarissa. Sorry guys for disturbing. In this novel by Graham Greene, a double agent uses classic works of fiction to encode secret information. He put Clarissa Harlow back in the bookcase. Is the first clue to his treachery. Then he draws on war and peace and the way we live now as matrix for secretly ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन. आइडेंटिफाई द नॉवल. सो ओवरऑल आप देखेंगे बहुत कुछ एक्सप्लेन है यहाँ पे रिगार्डिंग नॉवल. एंड द आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी, द ह्यूमन फैक्टर. सो गाइस अभी मैंने आपको स्पेसिफिक ऑथर्स की नॉवल से एसोसिएटेड PYQ शेयर किए थे. अभी हम लोग कुछ रिमेनिंग ब्रिटिश जो आपके लिटरेचर में नॉवलिस्ट बचे हैं, लाइक प्रोस राइटर्स बचे हैं, उन पर जो बेस्ड ऑन आपके 2014 से 2024 तक क्वेश्चन बने. लेट्स प्रैक्टिस दैम. सो हियर यू कैन सी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन इट इज. लेट read it. Here is a famous exchange from Arthur Conan Doyle's Silver Blaze. Is there any point to which you would wish to draw my attention to the curious incident of the dog in the night time? The dog did nothing in the night time. What was Sherlock Holmes' response? तो यहाँ पर Sherlock जो आपका Holmes है, what response he gave? So here the answer we have option number B, that was the curious incident. This is next question. In Ephra Behns or Nuku, that was 1688 publication, how does the titular character die? So how he die? He actually cut to pieces slowly by the executioner. Okay, this is the option number D, जो basically next page पर है. I'm just showing you first. See, he is cut to piece slowly by the executioner. Okay.
Here we have next question. The library where the battle of books takes place is dash. So here the answer we have King's Library. Now the next question. In Moore's Utopia, the fictional traveler Raphael Hythlodae's second name in Greek means, here the answer we have ऑप्शन नंबर बी डिस्पेंसर्स ऑफ नॉनसेंस. तो मैं आपको बता दूं, आपके थॉमस मोर का यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है. ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ओरिजिनल जो इसका ईयर है, मतलब ओरिजिनल वर्जन का जो ईयर है, एज वेल दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन, बोथ द ईयर्स आपको ध्यान में रखने. सो बिकॉज इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, एज वेल द कोर आइडिया एंड द डिस्कशन जो आपकी नॉवल के अंदर हो रहा है इस वर्क पर्टिकुलर प्रॉस वर्क में, जस्ट डिस्कस अबाउट इट. नेक्स्ट वी हैव एसेज ऑफ इलिया वॉज पब्लिश्ड इन, सो 1823. Next question, which of the following is an example of homosexual fiction? Here the answer we have The Well of Loneliness. Question number next, the condition of England literature refers to. So answer we have the literature of England depicting the vulnerability of labor classes. Next question, all fiction for me is a kind of magic or trickery, a confidence trick. The statement has been made by, so answer we have Angus Wilson. Next question, in which of the following novels by Conrad do the Gold couple and Deconte appear as characters with Costguana as the setting? So here the answer we have option number C, Nostromo. Next question, to whom does Francis Bacon, now Francis Bacon most important exam perspective, offer the following piece of advice? Let's discuss. Let him sequester himself from the company of his countrymen, and that in such places where there is a good company of the nation dash let him upon his removes procure recommendations to some persons of quality residing in the place whither he removed. So here the answer we have option number C, The Traveller. Next question, in his masterpiece of the Laws of Ecclesiastical Polity, Richard Hooker affirmed an Anglican tradition as that of a threefold code not quickly broken. He specifically referred to the following except, here the answer we have community. Next question, a significant development in 1662 was the establishment of the Royal Society in England. The main purpose of the society was, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है बट इवन दो इफ यू वोंट्स रीड बिफोर एग्जामिनेशन तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आने वाला है. आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, to guide and promote the development of science and scientific exploration. Next question, the decline and fall of the Roman Empire by Edward Gibbon is a significant work in volumes. कितने वॉल्यूम में ये वर्क आया? That is in 6 volume. Now the next question, which of the following novels of Joseph Conrad is set in Malay? तो मले में इनका कौन सा नॉवल है जो सेट हुआ है? दैट इज लॉर्ड जिम. और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस हो गया जोसेफ कॉनरेड का, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट. 1899 में ब्लैकवुड मैगजीन में आ रहा है फर्स्ट और बुक फॉर्म में आ रहा है 1902 में. ओके वैसे आंसर इसका लॉर्ड जिम है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 1901. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द स्क्रीन प्ले फॉर द फिल्म वर्जन ऑफ जॉन फाउल्स नॉवल द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन? सबसे पहले आपने इस नॉवल को ध्यान से मगअप करना है, फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन. ये मैचिंग क्वेश्चन में अक्सर अपीयर रहती है जॉन फाउल्स की, एंड आंसर यहाँ पे वी हैव हैरोल्ड पिंटर. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द होगार्थ प्रेस इज फॉल्स? तो होगार्थ प्रेस वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव आपसे पूछा जाता है. लाइक ये फाउंड आपकी हो रही है 1917 में, और इसका एसोसिएशन है वर्जीनिया वुल्फ एंड उनके जो हस्बैंड है लियोनार्ड वुल्फ. सो ऑलमोस्ट जो आपके राइट ऑप्शन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं पहले, क्योंकि इससे हमारा क्लैरिटी आएगा. इट्स लोकेशन वॉज दियर होम कॉल्ड होगार्थ हाउस, ये भी राइट ऑप्शन है. द प्रेस वॉज सॉलली डिवोटेड टू पब्लिशिंग इंटरनेशनल क्लासिक इन ट्रांसलेशन. देखिए ये रॉन्ग है, क्योंकि इनके खुद के वर्क जो थे पहले पब्लिश हुए थे उसमें, जैसे कि द प्रेस पब्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ गॉर्की, शिकॉव, टॉल्स्टॉय और दोस्तोवस्की, राइल्क और सिवेवो एंड अदर्स. तो मतलब ये कुछ राइटर्स थे जिनके लाइक ट्रांसलेशंस एंड वर्क्स आए थे. एंड अदरवाइज आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द रॉन्ग वन, जो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको राइट जो ऑप्शंस थे वो भी साथ के साथ क्लियर करा दिए. विच विक्टोरियन नॉवल हैज द सबटाइटल न्यू फोर्स विद एन ओल्ड फेस? तो कौन सा नॉवल है? दैट इज हाइपेथिया. Next question, who among the following wrote a book on the life and works of Dante Gabriel Rossetti? Here the answer we have Evelyn Waugh. Now the next question, after the Norman conquest 1660, Norman French was the dominant language used by.
So we have the upper classes. Next question, which of the following plays by David Hare is not part of a trilogy of State of the Nation plays? So here the answer we have not a part, ध्यान रखना, a power of yes, otherwise absence of war, racing demon and murmuring judge, part of trilogy. Next question, which among the following text purports to be the autobiography of a mad German philosopher, edited by an equally fictitious editor? So here the answer we have Sartor's Resartus. Next question, what does the title Morte d'Arthur mean? So here the mean we have death of author. Next question, Imagism is associated with, so answer we have according to options T.E. Hume. Next question, the Confessions of an English Opium Eater was written by, so that is written by De Quincey. Next question, the Loneliness of the Long Distance Runner is a novel by, so this is the novel by Alan Silitoy. Next question, you see here, the term Victorian evokes the attitudes of, so here the answer we have moral earnestness. Next question, the French Revolution had a significant impact on, so we have the answer romantic literature. Next question, what century is variously called the age of enlightenment, the age of sensibility, the age of Augustan age and the age of prose and reason? So here we have option number C, 18th century. Next question, Politics and the English Language is an essay by, so here the answer we have George Orwell. Next question, the most important of the evaluationists during the Victorian period was, answer we have Charles Darwin. Next question, the word nature in the 18th century literature stands for human nature. Who is given credit for the first using the term romantic? So here the answer we have Friedrich Schlegel. Next question, the Crystal Palace, a key exhibit of the Great Exhibition, was designed by, so it is designed by Joseph Paxton. Next question, the Augustan age is called so because the English writers imitated the Roman writers during this period. Next question, Reformation was predominantly a movement in, so this is the movement in religion. Next question, which among the following works by Daniel Defoe landed him in prison and the pillory? So here the answer we have option number C, The Shortest Way with Dissenters. Next question, my first acquaintance with poets, an unforgettable account of meeting with literary heroes, is written by William Hazlitt. Now the next question, Elizabeth Gaskell's novel Mary Barton is subtitle, Mary Barton का subtitle कई बार एग्जाम में पूछा गया है. This is also the question, A Tale of Manchester Life. Which of the following novels has a great impact on the formal experimentation in contemporary fiction? So here the answer we have Lawrence Stern, Tristram Shandy. Next question, which of the following books is by Margaret Atwood? So here we have the answer option number C, Edible Women. Next question, the Enlightenment believed in the universal authority of reason. Next question, the subtitle of William Goldwyn Caleb William is. So here the answer we have Things as They Are. The Castle of Otranto is an example of Gothic fiction. You Can't Do Both is a novel by, so this is by Kingsley Amis. And next question we have Margaret Drabble is the author of, option number B, The Witch of Exmoor. Next question, W.M. Thackeray's Vanity Fair owes its title to Bunyan Pilgrim Progress. Next question, the Puritans shut down all theatres in England in 1642. Next question, Confessions of an English Opium Eater is a literary work by, this is by Thomas De Quincey, and this again repeat in exams. Next question, which among the following novels has more than one ending? तो कौन सा novel है? French Lieutenant Women. Next question, who among the following is not an Irish writer? So overall आपके Oscar Wilde, Oliver Goldsmith, Edmund Burke are the Irish writer, but Thomas Gray he is not associated with, of course, Ireland. This is next question. Entries in the diary of Samuel Pepys begins after. So it begins after Restoration. Next question. How does John Stuart Mill define happiness? Pleasure and the absence of pain. This is happiness according to John Stuart Mill. John Stuart Mill आपसे examination में काफ़ी पूछे जाते हैं. Just be prepared accordingly.
नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस टर्न्स ट्रिस्ट्रम शैंडी कंटेन्स, सो इट कंटेन्स अप्रॉक्स 9 वॉल्यूम्स। ये आपको ध्यान में रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चन है और यहाँ से आपके फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री 2 मार्क्स स्कोर होते हैं ओनली इफ यू हैव नॉलेज अबाउट इट। Next question, which character in William Golding's Lord of the Flies, one of most important work novel, maintains life is scientific? So here the answer we have Piggy. Now the next question we have, which of the following novels by H.G. Wells is about the conditions of England as empire? So here the answer we have Tony Bungay. Next work, Jabberwocky is a creation in, तो ये आपका creation कहाँ पर है? That is Lewis Carroll's work. Next question, the round table is a collection of essays jointly written by, so this is jointly written by William Hazlitt and Lang Hunt. Next question, a young lady's entrance into the world is the subtitle of, so here we have Evelina. Next question, which of the following can't be classified as fantasy fiction? So here the answer we have the History Man, Malcolm Bradbury, otherwise Inheritors, Magus, Lord of the Rings, ये सभी आपके क्या है, classified fantasy fiction है. Next question, while compelling with what sort of book did Samuel Richardson conceive of the idea for his Pamela or Virtue Rewarded, जिसका subtitle और you can say another title. So answer we have a book of model letters. So guys, यहाँ मैं आपसे काफ़ी सारे इनफैक्ट हम लोगों ने 100+ क्वेश्चन इनफैक्ट PYQs जो बेस्ड ऑन नॉवेल्स पे आपसे बने हैं 2014 से लेके 24 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। काफ़ी सारा कुछ आज हमने प्रैक्टिस किया है, होप आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी आपका जो डे आफ्टर टुमारो एग्जामिनेशन होने वाला है 5 जैन को UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का, और सबसे अच्छी बात ये है जितने सारे PYQs हमने डिस्कस किए हैं ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने आपसे सिलेक्टेड बात की थी। अभी लास्ट में आपने क्या करना है, आफ्टर वॉचिंग वीडियो लाइक ज़रूर से करना है और मुझे कमेंट में बताना है इफ़ यू वांट मोर PYQs, ताकि हम लोग और PYQs लगा लें बिफोर एग्जामिनेशन। अगर आपका स्टेमिना है टू जस्ट सॉल्व मोर PYQs तो टेल मी, आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी मेरे पास इतने सारे PYQs रिमेनिंग बचे हैं क्योंकि कंप्लीट फाइल है जो आई हैव परचेज्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द सेम, राइट। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे PYQs, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिल रही है ऑफकोर्स यार किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं ओवरऑल। अगर न्यू है चैनल पर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जो सो दैट यू गाइस कैन फर्दर ऑफकोर्स कनेक्ट विद द जर्नी of literature with me. We will meet in next video friends. Till then, bye bye.